Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. This is our part 5 of Rajasthan Economic Survey 2022 and 23. This video is targeting those students who are preparing for assistant professor exam and RAS exam. Without wasting any further time, I would like to start today's lecture. I hope this video will be helpful to you guys in your upcoming exam. If you like this video, then I would request you all to like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Now let us start our today's topic with Sustainable Development Goals. Okay, now Sustainable Development Goals में आपको क्या पढ़ना है? SDG, also known as Global Goals. These are also known as global goals, were adopted by all UN member states as a universal call to end poverty, protect the planet, and to ensure that all people enjoy prosperity and peace by 2030. There are 17 goals with 169 targets which are to be achieved by 2030. ठीक है, तो टोटल 17 गोल्स है हमारे पास. अब ये हमारे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में क्या कर रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका एजेंडा क्या था हमारे पास. ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, अब इसका थर्ड वर्जन अभी अभी इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया शोज इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल स्केल मूविंग फ्रॉम 60 to 66. Whereas for Rajasthan has improved its overall SDG scores from 57 to 60. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 57 to 60. For the effective implementation and monitoring of SDG in the state indicators frame SIF has been developed. क्यों इसको डेवलप किया गया? For effective implementation and monitoring of SDG has been developed as per the priority of the state. SIF version 2 includes a total of 330 indicators. अब आगे चलते हैं. For the effective implementation and monitoring of SDG in the districts, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस चीज को अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया गया है. अ टोटल ऑफ 226 indicators are included in the version 2 of DIL. All right, now the third version of Rajasthan SDG index was launched in March 2022, which was computed on 75 indicators. In Rajasthan SDG Index 3, district Jaipur is top in the list, while Bara stands in the bottom position across 33 districts of Rajasthan. So it is a very important point. अब आगे पढ़ लेते हैं. A cell has been established in the Directorate of Economics and Statistics, योजना भवन जयपुर के अंदर. फॉर क्यों ये डेवलप किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है? फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG in the state. At the district level, the district level sustainable development goals and implementation and monitoring committees has been constituted under the chairmanship of district collectors. Now let us talk about Chief Minister's Rajasthan Economic Transformation Advisory Council. ये नया सेट हुआ है, सेटअप किया गया है, और इसके बारे में हमें जो भी पढ़ने होंगे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इसको शॉर्ट में CMRETAC बोलते हैं. इसकी आपकी डेफिनेशन जो इसका एब्रीविएशन है, ये तो फुल फॉर्म आ सकती है. तो has been constituted to act as a think tank to improve the economic and financial landscape of the state. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, to improve the economic financial landscape of the state. जो कमिटी या फिर काउंसिल अभी सेटअप हुई है उसका पूरा नाम क्या है? अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक एक्शनेबल एडवाइस on a range of economic growth and development challenges facing the state. ठीक है, आइडेंटिफाई करना, प्रोवाइड करना एडवाइस किसके ऊपर? कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं जो कि स्टेट फेस कर रहा है. कमीशन स्टडीज ऑन स्पेसिफिक इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इश्यूज for in-depth analysis, map the ongoing initiatives of the state, recalibrate strategic and operational steps to ensure achievement of medium-term growth, facilitate the development of implementable solutions for medium-term development,
challenges faced by the state's development plan and provide recommendation for its implementation, provide periodic guidance to the line department for implementing the recommendations of the council, और लास्ट में है ऑर्गेनाइज लेक्चर्स ऑफ नेशनल एंड। अब इसके जो ये काम है ना, ये आपको अच्छे से समझ के रखने, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्योंकि कहीं से भी पेपर बन जाता है। इसके एक एक शब्द जो लिखे हुए आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा समय है उसको हम यूज करेंगे। स्टडी पेपर्स हैव प्रिपेयर्ड, इसके अंदर किस किस टॉपिक के ऊपर आप देख सकते हैं, ये सब टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब जो आने वाला है ना टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस बने थे। ये है फ्लैगशिप स्कीम्स। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड decided to declare 33 जो अभी पढ़ने जा रहे हैं schemes और programs as state flagship programs with a view to strengthen the deprived sections of the society and bringing them into the mainstream of the development। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक है आपके पास फूड एंड सिविल सप्लाईज, ₹1 पर kg wheat। ठीक है, तो अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम अ क्वांटिटी ऑफ 35 kg wheat पर रेशन कार्ड टू अंत्योदय फैमिली, जो अंत्योदय योजना है फैमिलीज, एंड 5 kg wheat पर टू बीपीएल एंड, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके तो ये एक हो गया, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी 33 है पूरी की पूरी। फिर है आपके पास सेकंड शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, हमें पता है कि ये 26 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ठीक है, इसी के बाद आपके पास है निरोगी राजस्थान अभियान जो लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, 18 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च हुआ था निरोगी राजस्थान। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? अब देखिए 18 है यहाँ पे, अब ये जो साइन होता है ये आप बोल सकते हैं एक पर्सन को ओवरऑल प्रोटेक्शन कर रहा है, तो निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, और 8 में 1 ऐड कर तो 9 आ जाएगा, 2019 टू कंट्रोल सीजनेबल कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड पॉल्यूशंस। अच्छा, आगे है आपके पास मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब आप ये देख सकते हो दोनों में डिफरेंस है इसके अंदर। ये 1 मई को स्टार्ट की गई थी 2022, जो कि अभी जस्ट है। ठीक है, अब उसके अंदर आपके पास निशुल्क दवा योजना भी इंक्लूडेड है और निशुल्क जांच योजना भी इंक्लूडेड है आपके पास। ठीक है, ये 33 में नहीं है, ये इसके अंडर का पार्ट है आपके पास। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई 2021। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसके अंदर इन्होंने इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। ठीक है, जो कि शुरू की गई थी 20 अगस्त 2020 को। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना, अंडर द स्कीम 50,000 इंटरेस्ट फ्री लोन इज बीइंग गिवन मेड अवेलेबल ऑफ 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ अर्बन एरियाज। तो इसका पता होना चाहिए आपको कि क्या है इसका मेन एम। आगे है आपके पास स्कूल एजुकेशन के लिए, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैव बीन स्टार्टेड। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपके पास है। उसके बाद आपको दे रखा है कि मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये इनके नाम से ही आप क्लियर हो रही हो। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019। दिस पॉलिसी फोकस टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बाय रेजिंग फार्मर्स इनकम। इसका मेन काम यही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अप टू 50% of the project cost, subject to a maximum of 100 lakh to farmers and ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 ये इम्प्लीमेंट की गई है फ्रॉम 7 अक्टूबर 2022। ठीक है, बाय मेकिंग, जो पहले की जो थी हमारे पास स्कीम उसको मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है टू प्रमोट रैपिड सस्टेनेबल बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। तो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्या क्या है आपके पास? 8% इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, सब्सिडी ऑन लोन्स अप टू ₹25 लाख
6% है, 5 करोड़ से लेकर, ये लैख है आपके पास 5 करोड़ तक, ठीक है। और 5% का सब्सिडी इंटरेस्ट है आपके पास यहाँ पर ऑन ₹10 करोड़, अप टू 10 करोड़। आगे है आपके पास ये राजस्थान माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, एक्ट 2019, जो कि एनेक्ट किया गया था ऑन 12 जून 2019 को। यहाँ पे लॉन्च की गई थी एक वेब पोर्टल जहाँ पे एप्लीकेशंस फाइल की जा सकती है। अब जो एमएसएमई जिसको फाइल करना है उनको डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली टू द नोडल एजेंसी को सबमिट करना होगा। तो या आगे है आपके पास फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मुख्यमंत्री युवा सबल योजना। इसमें हमें पता होना चाहिए कि 4,000 की जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है वो मेल्स को मिलेगी, वेयर एज 4,500 टू फीमेल्स, ट्रांसजेंडर एंड स्पेसिफिकली एबल्ड पर्सन। और ये कब तक मिलेगा ये भी पता होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 2 years और टिल दे गेट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच एवर वॉज अर्ली, ठीक है। और इसके लिए जो खुद ट्रेनिंग है उसको एटलीस्ट 3 month की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसके बाद इंटर्नशिप होगी 4 hours डेली इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। फिर है राजस्थान जन आधार योजना, ये इसका मेन टारगेट है 1 number 1 card 1 identity। फिर है जन सूचना पोर्टल, डेवलप टू एम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एट वन प्लेस। ये सब 33 फ्लैगशिप योजना के अंदर चल रहा है हमारा। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये इसको रिप्लेस किया गया है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अच्छा हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, सहयोग और उपहार योजना को इन्होंने रिप्लेस किया है। अंडर द स्कीम गर्ल्स आर बीइंग बेनिफिटेड एट डिफरेंट स्टेजेस। अब यहाँ पे देखना है हमें कि 31,000 जो है वो तो पे किया जाएगा ऑन द मैरिज ऑफ गर्ल्स 18 year एंड अबव, बीपीएल फैमिलीज बिलोंगिंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी क्लासेस, ठीक है। सिलिकॉसिस पॉलिसी किसके लिए था, जो मजदूर माइंस फैक्ट्री स्टोन ब्रेकेज ग्राइंडिंग का काम करते हैं उनके लिए ये है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम सिलिकॉसिस। अब आपके पास यहाँ पर है कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट 10,000 फॉर फ्यूनरल दिया जाएगा, ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को मिस मत करना। इंटरव्यू के अंदर खुद मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसके अंदर आपको फीमेल्स के लिए कौन कौन सी योजनाएं आपको पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कन्यादान योजना हो गई, मुख्यमंत्री एकल, ये एज इट इज पूछ लिया जाता है आपसे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज फ्लैगशिप स्कीम्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना, ये है फॉर द वुमेन 55 above, men 58 above, eligible for getting ₹750 per month after the age of 75 years above. ओल्ड एज पेंशनर आर एलिजिबल फॉर 1,000। तो ये 2 चीजें याद रखनी हो कि आगे आप 10 पेंशन योजना पढ़ोगे उसमें सबकी रेट्स आपको पता होनी चाहिए। अगला है आपके पास मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, विशेष योगदान, ठीक है। अब इसमें पेंशन मिलेगी वही 750 से 1,500 पर मंथ के लिए, ठीक है। फिर है पालनहार योजना, किसके लिए हो सकता है, जो टेक केयर करेगा दोस चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स आइदर डाइड और सर्विंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। फिर है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग योजना विच इज वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स राइट नाउ, एवरीबडी नोज इट, जिसके अंदर फ्री कोचिंग सर्विसेज फॉर वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर है आगे आपके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हम लोग आज पूरी 33 खत्म करेंगे। इसमें आपके पास देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। इन जो मेल कैंडिडेट्स है दे हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी योजनास फॉर मेल, एंड वेयर्स फॉर द फीमेल इज कंसर्न दे हैव टू प्रिपेयर फॉर फीमेल। फिर है आपके पास इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 2020 के अंदर स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब पूरे के पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका मेन टारगेट क्या है, टू रिड्यूस the incidence of low birth weight, disability at birth by improving the health and nutritional status of pregnant women and lactating mothers and children up to 3 years of age. Now we have
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये भी इसके बारे में भी सभी राजस्थान के स्टूडेंट्स को पता होगा। जिस गर्ल स्टूडेंट ने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो आरबीएससी कंडक्ट करवाता है उसे 65% मिनिमम, और सीबीएसई के अंदर 75% मिनिमम, जिसका जो एनुअल इनकम सैलरी है वो 2.5 लाख है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और रेगुलर होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये भी एक आ सकता है कि स्कूल के बच्चों के लिए क्या क्या है। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आरबीएसई सीबीएसई 50% और मोर मार्क्स विद एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 2.5 लाख, रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए। एवरी ईयर 1500 स्कूटियां डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, आगे है आपके पास राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेशन स्कीम्स। अंडर दिस स्कीम every year 200 meritorious students are sponsored to top 150 universities in the world. फॉरेस्ट की बात करते हैं तो घर घर औषधि योजना टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा ये कालमेघ, ये आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आया था मैंने खुद ने ये पेपर दिया था। घर घर औषधि योजना जो है इसमें पूछ लिया गया था कौन से 4 थे वो, ठीक है। और कब की बात है, 1 अगस्त 2021 की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, दिस स्कीम प्रोवाइड्स द ग्रांट ऑफ 1000 पर मंथ एंड मैक्सिमम 12,000 पर एनम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू मीटर्ड एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, ठीक है। ये है आपके पास। फिर है आपके पास फुल इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म की बात हो रही है। यहाँ पे टूरिज्म को एक इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया जाएगा। ऑल राइट, अब यहाँ पर अचीवमेंट और वो आ जाते हैं। आपने 33 फ्लैगशिप योजना जस्ट कंप्लीट की है, ये आपको टिप पर याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर फ्लैगशिप है, ये विश लिख दिया है मैंने, फ्लैगशिप योजना। So yeah guys, I hope this video was helpful to you guys. We have covered all 33 flagship yojanas today, and we will cover the other part of economic survey in our next videos. If you find this video helpful, then do like, share and subscribe for more student video. Thank you.